नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के तहत आज का दिन बेहद अहम। अब से थोड़ी देर में दिल्ली में मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति। द्विपक्षीय वार्ता में रणनीतिक संबंध और गहरा करने पर होगा जोर। ट्रेड डील पर भारत अमेरिका के बीच आज से 4 दिन की चर्चा। दिल्ली में अंतरिम समझौते को अंतिम रूप मिलने की उम्मीद। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल। यहां पर हो रहा है कैबिनेट विस्तार। বিবেচনার নগর পালন করিম রহিত হইয়া ভয় বা সকল পক্ষপাত শ্রেণীর জনগণের নিহাই সংবিধান ও বিধি অনুসারে সকল ন্যায়াচরণ নাখান জনগণের ভীতি সংবিধান আর বিধি অনুযায়ী ন্যায্য আচার করিম। আমি তাপস রায় দীপক বর্মন ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে কোনো বিষয় রাজ্যের মন্ত্রী হয়া যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা ওই মন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্য সমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতি রেখে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। মানসিক গিলার্থে কোনো কিছু প্রকাশ না করিম, বিধিগুলা মানিয়া চলিম। May I now request the following cabinet ministers designate to rise and take oath before the Honorable Governor: Shri Jagannath Chattopadhyay, Shri Sapan Dasgupta, Dr. Kalyan Chakravarti, Dr. Shazwat Mukherjee, Shri Arup Kumar Das, Dr. Ajay Kumar Poddar, Shri Dut Kumar Mandal. আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি নিষ্ঠা ও অনুসরণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে পালন করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায় আচরণ করিব। আমি অরূপ কুমার দাস ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে
বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা ওই মন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। May I now request the following ministers of state, independent charge, designate, to rise and take oath before the Honorable Governor. Srimati Malati Rama Roy, Shri Rajesh Mahata, Dr. Indraneel Khan. আমি I, Dr. Indraneel Sri Khan, Rajesh Mahato, ঈশ্বরের নামে শপথ do swear in the name of God যে বিধি দ্বারা that I স্থাপিত will bear ভারতের true faith সত্যনিষ্ঠার and সহিত প্রতিজ্ঞা allegiance করিতেছি to the Constitution of India আমি অকৃত্রিম as by law নিষ্ঠা ও established, আনুগত্য that I will uphold the sovereignty আমি ভারতের and integrity of সার্বভৌমত্ব ও India, অখণ্ডতা that রক্ষা I will করিব faithfully পশ্চিমবঙ্গ and রাজ্যের conscientiously মন্ত্রী রূপে discharge আমার my কর্তব্য duties as a সমূহ minister নিষ্ঠাপূর্বক of the state এবং of West বিবেকসম্মতভাবে and that I নির্বাহ will করিব do right এবং to all ভয় manners বা পক্ষপাত of people প্রীতি in বা accordance বিদ্বেষ with রহিত the করিয়া Constitution সকল শ্রেণীর and the জনগণের law প্রতি without fear সংবিধান or ও favor, বিধি অনুসারে affection ন্যায়চারণ or ill will. করিব। খাতির বা নিহাই দন না করিয়া সকল নাখান জনগণের ভীতি সংবিধান আরো বিধি অনুযায়ী ন্যায্য আচার করি। আমি I, ডাক্তার Rajesh Mahato, ঈশ্বরের swear in the name of God করিতেছি that I will not পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে directly মন্ত্রী or রূপে indirectly communicate or প্রতিজ্ঞা করিতেছি to any person যে কোনো or person বিষয়ে যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা ওই মন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্য সমূহে যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্দিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। প্রকাশ না করিম, বিধি গিলা মানিয়া চলিম। ধন্যবাদ।
May I now request the following ministers of state designate to rise and take oath before the Honorable Governor: Shri Joel Murmu, Dr. Hare Krishnan Bera, Shri Anandamay Barman, Shri Ashok Jinda, Shri Nadiyar Chand Bauri, Shri Vishal Lama, Shri Shantanu Pramanik, Srimati Momita Bishwas Mishra, Shri Umesh Rai, Srimati Purnima Chakravarti. আমি চাঁদু বঙ্গা যুকুমতে হাটাওয়াটা ধরা দেখিয়া মনেতে এই জগতে সংবিধান কেতান্তে গভীর মনটার মনত ইন দহয়া ইন ভারত বেতালিয়া সমারি দিবি দুঃখিয়া দহয়া কাতে চালাওই দক্ষিণ বাংলা পনেরো ট্রেন বিপ মন্ত্রী লেখাতে ইয়া अंगीभरी को मन और बेचनो मोनेते कमी पुरवा और बगोर से बेगोर बगोर दिएते दुलर से हाना हली बांग मोने काते चेतान रे संविधान चेतान रे कमी पुरव लगी इन कमी दिया আমি জয়াল মুন্ডু চাঁদু বাবা নতুন থেকে হাতাওয়া সরাসরি মনেতে ফিরিয়ে হাতে ইচ্ছে প্রকাশ করিব না যাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। হরে কৃষ্ণ। জয় শ্রী। May I now request the following ministers of state designate to rise and take oath before the Honorable Governor: Shri Kaushik Chaudhary, Shri Bhaskar Bhattacharya, Shri Dibakar Gharami,
Shri Amiya Kishku, Srimati Kalita Majhi, Srimati Gargi Das Ghosh, Shri Biraj Vishwas, May I now request the following Ministers of State designate to rise and take oath before the Honorable Governor, Shri Kaushik Chaudhary, Shri Bhaskar Bhattacharya, Shri Dibakar Gharami, Shri Amiya Kishku, Srimati Kalita Majhi, Srimati Gargi Das Ghosh, Shri Biraj Vishwas, Shri Dipankar Jana, Srimati Sobhana Sarkar. ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অক্ষুণ্ণ নিষ্ঠা ও আনুগত্য করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিধিসম্মত ভাবে এবং ভয় বা পক্ষপাত বা বিদ্বেষ করিয়া জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়চরণ করিব। নমস্কার। মানবতা সামঞ্জস্য দিন কামিয়া আমি সুমনা সরকার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে যে বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনি হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা ওই মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্য শাসনে যথাযথ এবং আবশ্যক হইতে পারে তদানীতি আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বা বিভিন্ন প্রকাশ করিব না। নমস্কার। নমস্কার। জোহার। All are requested to rise for the national song, followed by the national anthem. तो कोलकाता के लोक भवन से अभी आप देख रहे थे सीधा प्रसारण। आपको बता दें कि शुभेंदु सरकार के कैबिनेट का हुआ है विस्तार और यही है इस वक्त की बड़ी खबर। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में कैबिनेट का हुआ है विस्तार, जहां पर शुभेंदु सरकार में 35 नए मंत्री भी शामिल हो गए हैं। राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इन 35 नए मंत्रियों को इंद्रनील खान, अशोक डिंडा कैबिनेट में शामिल हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी कई लोगों को दिया है, कई को मंत्रियों को दिया है।
है और इस वक्त की यही है पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, जहां जगन्नाथ चट्टोपाध्याय बनाए गए हैं मंत्री। अरूप कुमार दास, अजय कुमार पोद्दार का नाम भी इसमें है शामिल। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, आपसे कुछ पलों पहले की है और आपको हमने सीधा प्रसारण भी दिखाया, जहां पर आज कोलकाता लोक भवन में 35 नए मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। जोयल मुर्मू भी कैबिनेट में शामिल हुए हैं। लोक भवन पश्चिम बंगाल में आज शपथ विधि समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही साथ कई गणमान्य लोग यहां पर मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति में 35 नए मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। इस 35 नए मंत्रियों में महिला विधायक भी शामिल हैं, जो कि मंत्री बनी हैं, और शरद्वत मुखर्जी, दीपक बर्मन, तपस रॉय, ये वो नाम हैं जो इन 35 नए मंत्रियों में शामिल हैं। तो पश्चिम बंगाल में हुआ है कैबिनेट का विस्तार। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की और उसके बाद मंत्रिमंडल का ये दूसरा विस्तार है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में 35 नए मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। कैबिनेट का विस्तार हुआ है। दूसरी बार 35 नए मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। आपको बता दें कि इससे पहले भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली थी और उनके साथ साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बीमारी हुई तो पता लगा कि हॉस्पिटल का बिल ऑफिस के हेल्थ इंश्योरेंस से कई गुना ज्यादा है। काश मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत के लिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कितनी महत्वपूर्ण है, इसकी तस्वीर इन दिनों म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग की भारत यात्रा के दौरान देखने को मिल रही है। उनकी यात्रा की शुरुआत भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया से करना और वहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना भी म्यांमार की ओर से भारत के साथ सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूती प्रदान करता है। अब आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से म्यांमार के राष्ट्रपति मुलाकात करेंगे। द्विपक्षीय वार्ता में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। म्यांमार के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति बनने के लगभग 2 महीने से भी कम समय बाद आंग लाइंग की ये पहली भारत यात्रा है। तो भारत म्यांमार के संबंधों की अगर हम बात करें तो रक्षा सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत और म्यांमार के बीच गहरे संबंध हैं। दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है भारत के लिए म्यांमार। दोनों देश बंगाल की खाड़ी में अपनी सीमा को साझा करते हैं। दोनों देशों के मध्य सीमा साझा होती है। गहरे आध्यात्मिक और ऐतिहासिक संबंध भी हैं भारत और म्यांमार के बीच में। इसके अलावा भाषाई और जातीय संबंध भी साझा करते हैं दोनों देश, और यही दोनों देशों को और भी नजदीक लाता है। म्यांमार एकमात्र आसियान देश है जो भारत से सटा हुआ है। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भारत और म्यांमार दोनों ही देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत भारत गहरा सहयोग भी यहाँ पर रखता है और वहीं एक्ट ईस्ट नीति से म्यांमार के साथ सहयोग भी बढ़ा रहा है। म्यांमार में भारतीय मूल के 15 से 20 लाख लोग रहते हैं और जब हम संस्कृति की बात करते हैं, आध्यात्मिकता की बात करते हैं, तो भारत और म्यांमार दोनों ही आपस में गहरे संबंधों को जोड़ते हैं। म्यांमार में कई विकास परियोजनाओं में भारत शामिल है। जी हाँ, ऐसी कई तमाम सारी विकास परियोजनाएं जिसमें भारत अपनी अहम भूमिका निभाता है। तकनीकी और आर्थिक सहयोग भी भारत की ओर से म्यांमार को प्रदान किया जाता है।
और इसके साथ साथ रक्षा सहयोग को समझना भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। भारत और म्यांमार के मध्य जो रक्षा सहयोग है उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। आपको बता दें कि रक्षा सहयोग दोनों संबंधों का मजबूत स्तंभ है। जी हाँ, और इसके साथ साथ उच्च स्तरीय दौरों से मजबूत और भी संबंध होते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। उन्नत प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में दोनों ही देश आपस में सहयोग करते हैं, जिसमें विशिष्ट उपकरण और प्रौद्योगिकी भी साझा होती है। तो भारत और म्यांमार के बीच जब हम रक्षा संबंधों की बात करते हैं तो उसमें भी विशिष्ट उपकरण और प्रौद्योगिकी को दोनों ही देश आपस में साझा करते हैं। वहीं आपसी सुरक्षा की समझ भी दोनों ही देशों के मध्य और भी बेहतर हुई है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम लगातार जारी है। आधुनिक एकीकृत चेकपोस्ट का निर्माण भी इन दोनों ही देशों के संबंधों में शामिल है। और रक्षा क्षेत्र ही नहीं बल्कि व्यापारिक साझेदार भी हैं दोनों देश, भारत और म्यांमार। जी हाँ, भारत म्यांमार बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। 1970 की अगर हम बात करें तो व्यापार समझौते पर इस दौरान हस्ताक्षर हुए थे और उसके बाद द्विपक्षीय व्यापार में लगातार वृद्धि देखी गई है। साल 2021 से 2022 के बीच की हम बात करें तो व्यापार 1.03 अरब अमेरिकी डॉलर में हुआ। 1997 से 98 के बीच की बात करते हैं तो व्यापार 328 मिलियन डॉलर का हुआ। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे दोनों ही देशों में रिश्ते जो हैं वो प्रगाढ़ हुए हैं। 2013 से 14 के मध्य की अगर हम बात करते हैं तो व्यापार 2.18 अरब डॉलर का, और फिर ये संबंध आगे बढ़े 2021 से 22 पर अगर नजर डालते हैं तो दालों के आयात से व्यापार में और भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। म्यांमार में 34 उद्यमों के जरिए निवेश भी देखने को मिला है। तेल और गैस क्षेत्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दोनों ही देशों के बीच साबित हुए हैं। अब संस्कृति पर भी एक नजर डालते हैं। भारत म्यांमार के जो संबंध हैं वो सांस्कृतिक रूप से कितने गहरे हैं। भारत और म्यांमार के घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध हैं। जी हाँ, बहुत ही पुराने ये संबंध हैं और दोनों ही देशों की जो ये साझा प्रतिबद्धता है वो साफ तौर पर नजर आती है। भारत आनंद मंदिर का कर रहा है जीर्णोद्धार, जो हम कह रहे हैं कि भारत कई बार म्यांमार की मदद करता हुआ भी नजर आया है, तो वो भी सांस्कृतिक क्षेत्र में नजर आता है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत ओमान CEPA यानी व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो रहा है। इससे देश को कपड़ा, चमड़ा, जेम्स, ज्वेलरी और फार्मा सेक्टर में बड़ा लाभ मिलेगा। समझौते के तहत कई भारतीय श्रम प्रधान निर्यातों को शून्य शुल्क यानी बिना किसी टैक्स पर ओमान में प्रवेश मिलेगा। समझौते पर पिछले साल दिसंबर में हस्ताक्षर किए गए थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्कट का दौरा किया था। ओमान ने अपने करीब 98% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क पहुंच देने की पेशकश की है, जिससे भारत के 99.38% निर्यात को सीधे सीधे लाभ मिलेगा। इसमें जेम्स एंड ज्वेलरी, कपड़ा, चमड़ा, फुटवेयर, खेल सामान, प्लास्टिक और फर्नीचर, कृषि उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद, दवाइयाँ और मेडिकल उपकरण और साथ ही साथ ऑटोमोबाइल जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। इसी तरह भारत ने अपनी 77.79% टैरिफ लाइनों पर शुल्क में छूट देने की पेशकश की है, जो ओमान से आने वाले 94.81% आयात को कवर करती है। कुछ संवेदनशील उत्पादों को छूट से बाहर रखा गया है, जैसे कृषि उत्पाद, सोना चांदी और आभूषण। समझौते में कंप्यूटर सेवाएं, बिजनेस, शिक्षा, स्वास्थ्य, शोध और प्रोफेशनल सेवाओं में नए अवसर भी खुलते हुए नजर आएंगे। तो भारत ओमान से अलग अब बात भारत अमेरिका की करते हैं। भारत और अमेरिका अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत आज फिर से शुरू हो रही है। दोनों पक्षों के मुख्य वार्ताकार आज से दिल्ली में 4 जून तक बातचीत करेंगे। चर्चा का मुख्य उद्देश्य प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते के विवरण और कानूनी मसौदे को अंतिम रूप प्रदान करना होगा, जिसके व्यापक ढांचे पर इस वर्ष की शुरुआत में सहमति बनी थी। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मुख्य वार्ताकार ब्रैंडन लिंच करेंगे, जबकि भारत की टीम का नेतृत्व वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन करेंगे। इन वार्ताओं में व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी कि BTA के
फोन रह गया किसका ये? हैदराबाद हाउस से ये सीधी तस्वीरें अभी आप देख रहे थे। आपको बता दें कि म्यांमार के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हैदराबाद हाउस में होनी है और वहीं से जुड़ी हुई तस्वीरें आपके साथ हम साझा कर रहे थे। म्यांमार के राष्ट्रपति यूमे नांगह्यांग आज भारत दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हो रही है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम आपको बता रहे थे भारत और अमेरिका से जुड़ी हुई खबर। जी हां, भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को और भी विस्तार से आपको समझाते हैं, क्योंकि ये जो समझौता होना है उसको लेकर के समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर भारत और अमेरिका किस मिशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ जिक्र होता है मिशन 500 का, जिस लक्ष्य को लेकर के अगले 5 साल का खाका खींचा जाना है और अमेरिका से $500 अरब की खरीद का लक्ष्य इसके माध्यम से रखा गया। आज से 4 जून तक दिल्ली में 4 दिनों तक वार्ता होनी है और आपको बता दें कि समझौते को विस्तार से अगर जाने तो अगले 5 साल अमेरिका से $500 अरब का लक्ष्य रखा गया है। तेल, गैस, कोकिंग कोल खरीदी पर साफ तौर पर जोर है और इतना ही नहीं, विमान खरीदने पर भारत का जोर है। यानी कि कैसे भारत और अमेरिका के मध्य भी जो रिश्ते हैं उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। मिशन 500 खास तौर पर फोकस में अगले 5 साल अमेरिका से $500 अरब का लक्ष्य है। तेल, गैस, कोकिंग कोल खरीद पर साफ तौर पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन इसके माध्यम से अगर हम देखें कि भारत को क्या कुछ लाभ होगा, भारत को क्या फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, तो वो आपको बताते हैं। क्योंकि जेनेरिक दवाइयों को इससे बढ़ावा मिलेगा। तो समझौता जो होना है भारत और अमेरिका के मध्य में, उससे ये भी समझना होगा कि भारत को किस तरह से लाभ मिलेगा। स्मार्टफोन निर्यात को और भी मजबूती मिलने की यहाँ पर संभावनाएं नजर आएंगी। रत्न आभूषण क्षेत्र को राहत मिलेगी, यानी कि रत्न और आभूषण का जो क्षेत्र है उसे और बढ़ावा मिलेगा। जेनेरिक दवाइयों को भी साफ तौर पर और भी बढ़ावा मिलता हुआ इस समझौते के माध्यम से नजर आएगा। स्मार्टफोन निर्यात को भी मजबूती मिलेगी। अब अमेरिका को क्या फायदा होगा ये भी जानिए। दरअसल औद्योगिक उत्पादों को अधिक पहुंच मिलेगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। वाइन और स्पिरिट पर रियायत मिलेगी। बादाम, अखरोट, ताजे फलों पर शुल्क में इस समझौते के माध्यम से राहत मिलेगी। औद्योगिक उत्पादों को और भी अधिक पहुंच मिलेगी, यानी कि भारत को लाभ होगा, अमेरिका को लाभ होगा इस समझौते से। वाइन और स्पिरिट पर रियायत भी मिलेगी। अब घबराने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जिन पर भारत का खास तौर पर फोकस है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इन सेक्टर्स को लेकर के आप घबराएं नहीं। भारत का कृषि क्षेत्र जो है वो इस समझौते की वजह से किसी तरह से प्रभावित नहीं होगा, पूरी तरह से सुरक्षित है। डेयरी सेक्टर को छूट नहीं मिलेगी और मछुआरों के हितों की भी पूरी रक्षा ये समझौता करेगा। यानी कि मछुआरे के हितों को किसी तरह से कोई प्रभावित करता हुआ ये समझौता नहीं होगा। भारत का कृषि क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित ही है। हर हाल में, हर क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को जो है वो बूस्ट मिलेगा, कमज़ोर नहीं होगा और सुरक्षित ही रहेगा। डेयरी सेक्टर को भी छूट नहीं होगी।
अब भारत के लिए ये डील और भी क्यों जरूरी हो जाती है, ये भी जान लीजिए। आपको बताएं कि भारतीय निर्यात को एक बड़ा बाजार मिलेगा इस डील के माध्यम से, इस समझौते के माध्यम से। इस खबर पर और ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अजय मिश्र जुड़ गए हैं। अजय, सबसे पहले तो CEPA की ही बात करते हैं, क्योंकि भारत और ओमान के मध्य जिस तरह से हम रिश्तों की प्रगाढ़ता को देख रहे हैं, तो भारत के बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनके लिए एक बड़े अवसर, बड़े बाजार के खुलने की CEPA के माध्यम से अब उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि CEPA आज से लागू हो रहा है। बिल्कुल संध्या, सही कहा आपने। और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से भारत और ओमान का ये जो समग्र आर्थिक समझौता है वो सबसे महत्वपूर्ण नजर आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से वैश्विक हालात हैं उसमें किसी भी देश की खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सबसे दो महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। और भारत अपने एनर्जी बास्केट को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है, और यही वजह है कि हम लगातार खाड़ी देशों के साथ अपने संबंध को और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। UAE के साथ हम पहले ही कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट कर चुके हैं ट्रेड को लेकर के। ये ओमान दूसरा देश है खाड़ी देशों में जहां पर 7 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि भारत और ओमान न केवल व्यापार के संदर्भ में बल्कि निवेश के लिहाज से, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के लिहाज से, सर्विसेज के एक्सपोर्ट के लिहाज से एक दूसरे के और करीब आए। और भारत की जो लुक वेस्ट पॉलिसी है उसका एक बहुत ही सशक्त उदाहरण भारत और ओमान के बीच में ये जो समझौता आज से लागू होने जा रहा है, इस पर आज एक बेहद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। क्या कुछ फायदे होंगे हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन आज का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से, और भारत ओमान में खासतौर पर जो खाड़ी देशों के साथ संबंध है ऊर्जा सुरक्षा के मद्देनजर उसके लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। और अजय, यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए, जो भारत के मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिन फैक्ट्रियों में उत्पादन बड़ी तादाद में होता है, उनके लिए एक बड़े द्वार तो खुलेंगे ही, लेकिन यहाँ पर क्वालिटी पर भी फोकस करना होगा, क्योंकि आपको जब एक बड़ा बाजार मिलेगा तो वहां पर आपको भारत की विश्वसनीयता भी बनाए रखनी होगी। खासतौर पर यह ध्यान रखना होगा। तो वैश्विक मंदी के बीच में भारत जिस तरह से सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है, एक मजबूत स्तंभ के रूप में देखा जा रहा है। सभी बड़ी इकॉनमी चाहती हैं कि भारत के बाजार तक उनकी पहुंच हो, और इसीलिए सब लोग भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फिर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट पर काम करना चाहते हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि भारत की जो शक्ति है, आत्मनिर्भर भारत की जो शक्ति है वो ज्यादा बढ़ेगी, और हमारे जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं वो खाड़ी देशों में जाएंगे, और साथ ही साथ वहां से जो कॉम्प्लीमेंटरिटी के तहत जो हम लोग जिन वस्तुओं का आयात कर रहे हैं ओमान से और जो दूसरे देशों से, उससे भी हमारे अर्थव्यवस्था को फायदा होने की उम्मीद है। इसके साथ साथ भारत और अमेरिका की भी बात करते हैं, क्योंकि आगामी जो 4 दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले भारत और अमेरिका के अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर के। ऐसे में कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर विस्तार से बातचीत होनी है, और इस बातचीत को एक ठोस निर्णय की तरफ आगे बढ़ाया जाएगा? तो जिस तरह से भारतीय राजदूत सर्जी गौर ने कहा कि 99% काम पूरा हो चुका है भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर के, और कुछ ही दिनों और कुछ ही महीनों में इसको अंतिम जो मसौदे पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद जताई जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा है टैरिफ का। जैसा कि आप जानते हैं कि रिटेलिटरी टैरिफ जो ट्रंप ने पूरी दुनिया में लगाए थे, उसमें भारत पर 50% लगाया था। उसके बाद में इसे कम करके 25% किया गया। बाद में जो इंटरिम डील हुई उसमें 18% टैरिफ किया गया, लेकिन बाद में कोर्ट के आदेश के बाद ट्रंप प्रशासन ने सभी इकोनॉमीज पे 10% का फ्लैट टैरिफ लगा दिया है। अब भारत पे 18% का टैरिफ होगा या 10% का टैरिफ, इसी को लेकर के बात आगे बढ़ेगी। और उम्मीद ये की जा रही है कि भारत ने कहा है कि जो भी कॉम्पिटेटिव देश हैं भारत के, उन पर जो टैरिफ लगाया जाता है आप हमारे ऊपर भी टैरिफ लगाइए उतना ही, और हम उसके लिए तैयार हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हो सकता है अगले 4 दिनों में जो ये चीफ नेगोशिएटर्स नई दिल्ली में मिलने जा रहे हैं उसमें टैरिफ पर लेकर के कुछ सहमति बनेगी, और हो सकता है 10% के स्तर पर एक कॉमन टैरिफ आपको भारत के ऊपर भी लगता हुआ दिखाई दे। बाजार तो खुल ही चुके हैं दोनों ही देशों के बीच में, और ये जो 220 से $500 बिलियन का जो टारगेट है 2030 तक, तो इसको भी प्राप्त करने के लिए दोनों ही देश चाहते हैं कि जल्दी ही ट्रेड डील पर अंतिम सहमति बन पाए, और उसी की कोशिशों के तहत आज से ये प्रमुख वार्ता जो है वो शुरू होने जा रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद अजय जी, तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से खास तौर पर साझा करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि भारत वैश्विक सप्लाई चेन में लगातार अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहा है। अमेरिकी रिटेल दिग्गज वॉलमार्ट ने भारत से $40 अरब से ज्यादा की सोर्सिंग कर इस भरोसे को और भी मजबूत किया है। कंपनी अब भारतीय MSMEs और छोटे छोटे कारोबारियों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने पर फोकस कर रही है, जिससे देश के मैन्युफैक्चरिंग, निर्यात और रोजगार क्षेत्र को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।
पिछले कुछ वर्षों में भारत ने वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति को तेजी से मजबूत किया है। दुनिया की बड़ी कंपनियां अब भारत को केवल एक बड़ा उपभोक्ता बाजार नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और निर्यात केंद्र के रूप में देख रही हैं। यही वजह है कि अमेरिकी रिटेल दिग्गज वॉलमार्ट इंक के सीईओ ने हाल ही में कहा कि भारत दुनिया के सबसे गतिशील व्यापारिक केंद्रों में से एक बन चुका है। विशेषज्ञों की माने तो वॉलमार्ट जैसी वैश्विक कंपनियों की बढ़ती खरीदारी और निवेश भारत को एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब के रूप में और मजबूत कर सकता है। आपको बता दें कि वॉलमार्ट ने भारत से अब तक 40 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के सामान की खरीद की है। कंपनी ने 2027 तक हर साल 10 अरब डॉलर तक की सोर्सिंग का लक्ष्य रखा है, जिससे भारतीय व्यवसायों को वैश्विक बाजारों तक बेहतर पहुंच मिलेगी, साथ ही उत्पादन क्षमता मजबूत होगी। वॉलमार्ट भारतीय सप्लायर्स की क्षमता बढ़ाने, गुणवत्ता और अनुपालन मानकों को मजबूत करने और विनिर्माण विस्तार पर काम कर रही है, ताकि ज्यादा भारतीय कंपनियां निर्यात के लिए तैयार हो सकें। वॉलमार्ट की वृद्धि पहल के तहत अब तक 1,15,000 से ज्यादा उद्यमियों को समर्थन दिया जा चुका है। यह पहल एमएसएमईज को गुणवत्ता और अनुपालन मानकों को बढ़ाने और विनिर्माण क्षमता का विस्तार करने में मदद कर रही है, ताकि वे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर सकें और भारत के नवोन्मेषी व्यवसायों को दुनिया भर के ग्राहकों से जोड़ सकें। कंपनी का लक्ष्य 2028 तक 1,70,000 एमएसएमईज को इस कार्यक्रम से जोड़ना है। वर्ष 2018 में भारतीय ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट में 16 अरब डॉलर का निवेश कर 77% हिस्सेदारी खरीदी थी। वहीं वॉलमार्ट समर्थित फोन पे ने हाल ही में आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर्स दाखिल किए हैं। गौरतलब है कि आज दुनिया की कई बड़ी कंपनियां अपनी सप्लाई चेन को चीन से बाहर विविधतापूर्ण बनाने की कोशिश कर रही हैं। इस रणनीति में भारत एक मजबूत विकल्प बनकर उभरा है। वॉलमार्ट ने डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड और फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपो ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से ग्रोथ समिट का आयोजन किया था, जिसमें निर्यात के लिए तैयार व्यवसायों, एमएसएमईज, डिजिटल ब्रांड्स और सप्लाई चेन साझेदारों ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विकास के अवसरों पर चर्चा की गई। आने वाले समय में ऐसे और समिट आयोजित किए जाएंगे, जिससे भारत को आने वाले वर्षों में एक बड़े वैश्विक व्यापार और विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज 1 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन हमें दूध के पोषण, डेयरी उद्योग और विश्व की खाद्य सुरक्षा में इसके महत्व के बारे में याद दिलाता है। भारत, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दूध मानव जीवन का सबसे प्राचीन और संपूर्ण आहार माना जाता है। यह न केवल पोषण का स्रोत है, बल्कि कृषि अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास की रीढ़ भी है। भारत में दूध उत्पादन की कहानी केवल कृषि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति की कहानी है। भारत की श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में शुरू हुआ ऑपरेशन फ्लड दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम माना जाता है। इसने भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश में बदल दिया। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। वैश्विक दूध उत्पादन में लगभग 25% हिस्सेदारी रखता है। लाखों ग्रामीण परिवारों की आजीविका डेयरी सेक्टर पर आधारित है। अमूल और एनडीडीबी जैसे सहकारी मॉडल ने किसानों को सीधे बाजार से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय योगदान। दूध और डेयरी सेक्टर का योगदान केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था FAO के अनुसार डेयरी सेक्टर वैश्विक पोषण सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है। विकासशील देशों में ग्रामीण रोजगार का प्रमुख स्रोत है। बच्चों और बुजुर्गों के कुपोषण को कम करने में सहायक है। भारत का सहकारी मॉडल आज अफ्रीका और एशिया के कई देशों के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। कई देश भारत की डेयरी सहकारी प्रणाली को अपनाकर अपने किसानों को सशक्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। दूध का महत्व। दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है, क्योंकि इसमें शामिल होते हैं उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस, विटामिन B12 और D, आवश्यक फैटी एसिड्स। यह बच्चों की शारीरिक विकास, युवाओं की ऊर्जा और बुजुर्गों की हड्डियों में मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि दूध का सेवन संतुलित मात्रा और सही प्रकार में किया जाना चाहिए।
कम वसा वाला दूध और डेयरी उत्पाद स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभकारी माने जाते हैं, विशेषकर जीवन शैली आधारित बीमारियों के बढ़ते जोखिम को देखते हुए। अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हमें यह संदेश देता है कि दूध केवल एक खाद्य पदार्थ नहीं, बल्कि पोषण, रोजगार और वैश्विक विकास का आधार है। भारत की श्वेत क्रांति ने न केवल देश को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि दुनिया को यह भी दिखाया कि सहकारी मॉडल के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी जा सकती है। सहकारिता के माध्यम से आज भारत इस क्षेत्र में एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर चुका है और आने वाले वर्षों में डेयरी सेक्टर वैश्विक खाद्य सुरक्षा में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात हो रही है। हैदराबाद हाउस से तस्वीरें आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। तो हैदराबाद हाउस से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि म्यांमार के राष्ट्रपति भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज उनकी मुलाकात हो रही है हैदराबाद हाउस में, और म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ उनका प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया हुआ है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति की ये मुलाकात। आपको बता दें कि म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग भारत यात्रा पर हैं, और भारत और म्यांमार के संबंधों की अगर हम बात करें तो न केवल रक्षा और आर्थिक क्षेत्र में, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी भारत और म्यांमार के रिश्ते बेहद ही प्रगाढ़ हैं। और इन्हीं रिश्तों को और भी गहरा करने के लिहाज से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति की ये मुलाकात बहुत ही महत्वपूर्ण और खास मानी जा रही है। आपको बता दें कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने अपनी भारत यात्रा की शुरुआत भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया से की, और जो साफ तौर पर भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिकता को दर्शाता है और भारत और म्यांमार के संबंधों को भी दर्शाता है। तो हैदराबाद हाउस से ये तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के मध्य मुलाकात होनी है, द्विपक्षीय वार्ता होगी, और ये तस्वीरें साफ तौर पर भारत और म्यांमार के गहरे संबंधों के लिहाज से बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद म्यांमार के राष्ट्रपति की मुलाकात भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी होनी है। वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे, और ये तस्वीरें इस वक्त की हैदराबाद हाउस से। आपको बता दें कि म्यांमार के राष्ट्रपति बनने के लगभग 2 महीने से भी बहुत ही कम समय बाद म्यांमार के राष्ट्रपति की ये पहली भारत यात्रा है। तो हैदराबाद हाउस से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के मध्य मुलाकात हो रही है। और आपको बता दें कि दोनों के ही बीच में द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है। भारत और म्यांमार के बीच बहुत ही गहरे संबंध हैं, और ये जो मुलाकात है, जो वार्ता है, इसके माध्यम से भारत और म्यांमार के संबंध और भी प्रगाढ़ होते हुए और भी विस्तारित होते हुए नजर आएंगे। आइए आगे बढ़ते। आपको बता दें कि अफ्रीकी संघ ने इबोला संकट से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई आपातकालीन निदान, उपचार और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। अफ्रीका की स्वास्थ्य एजेंसी अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार ये सहायता युगांडा में पूर्वी क्षेत्रीय समन्वय केंद्र के माध्यम से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी हिस्से में राहत कार्यों के लिए भेजी गई है।
एजेंसी ने भारत सरकार और जनता का धन्यवाद किया और अफ्रीका के साथ एकजुटता दिखाने के लिए सराहना भी की। इस कदम से भारत ने एक बार फिर वैश्विक मित्र की भूमिका निभाई है। नेपाल के सत्ताधारी राष्ट्रीय स्वतंत्र का एक प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में 5 दिवसीय भारत दौरे पर रहेगा। ये यात्रा भाजपा के निमंत्रण पर आयोजित की जा रही है। इस दौरान नेपाली प्रतिनिधि मंडल नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेगा। भाजपा के विदेश मामलों के विभाग प्रभारी विजय चौथाईवाले ने बताया है कि इस दौरे का उद्देश्य आरएसपी और भाजपा के बीच पार्टी स्तर पर संवाद स्थापित करना है। साथ ही संगठनात्मक कार्यप्रणाली, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। काठमांडू में जारी बयान में आरएसपी ने कहा कि रवि लामिछाने अयोध्या की निजी यात्रा के अलावा भारत में नेपाली समुदाय और पार्टी के शुभचिंतकों से भी मुलाकात करेंगे। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने भारतीय भूमि पर अतिक्रमण को लेकर संसद में विवादित बयान दिया था। इजरायल और लेबनान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए अमेरिका ने एक नई कूटनीतिक पेशकश की है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है। इस बातचीत में दोनों देशों के बीच धीरे धीरे तनाव कम करने की योजना पर चर्चा की गई। अमेरिकी योजना के तहत ईरान समर्थित हिजबुल्लाह समूह इजरायल पर अपने सभी हमले रोक देगा और इसके बदले में इजरायल भी बेरूत में तनाव बढ़ाने वाली किसी भी कार्रवाई से बचेगा। लेबनान की संसद के स्पीकर नबीह बेरी ने संघर्ष विराम के लिए पहली गोली न चलाने की पूरी जिम्मेदारी इजरायल पर डाल दी है। दूसरी तरफ इजरायल के तेवर अब भी कड़े बने हुए हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी सैनिक कार्रवाई को लगातार जारी रखने के आदेश दिए हैं और इस बीच इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में कई रणनीतिक ठिकानों पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है, जिससे क्षेत्र में हालिया तनाव और ज्यादा गहरा गया है। अमेरिकी अधिकारियों का भी मानना है कि इजरायल हिजबुल्लाह की तरफ से हो रहे लगातार हमलों को नजरअंदाज नहीं करेगा। रुक करते हैं खेल की खबरों का। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया। पिछले सीजन में पंजाब किंग्स को हराकर टीम पहली बार चैंपियन बनी। आरसीबी ने इस बार खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करते हुए नया इतिहास रच दिया। फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की। टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 155 रन बनाए। गुजरात के लिए वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद अर्धशतक जड़ा और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। 156 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत संतुलित रही। अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली ने जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हुए अर्धशतक लगाया और टीम की जीत की नींव रख दी। आरसीबी ने 18 ओवर में 5 विकेट खोकर 161 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। पहलवान मीनाक्षी गोयत ने कहा कि उन्होंने विनेश फोगाट के खिलाफ एशियाई खेलों के चयन के लिए हुए मुकाबले में पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय ट्रायल्स में 53 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में 6-4 से जीत हासिल करने के बाद मीनाक्षी ने कहा कि ये नतीजा उनकी तैयारी और प्रतिस्पर्धी मानसिकता पर उनके विश्वास को दर्शाता है। साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन में महिला एकल वर्ग में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। स्वितोलिना ने चौथे दौर के मैच में स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेंचिच को 4-6, 6-4, 6-0 से हरा दिया। वहीं रूस की मीरा आंद्रीवा ने भी क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में सफलता हासिल की। मीरा ने स्विट्जरलैंड की जिल टिचमैन को 6-3, 6-2 के सीधे सेट में हराया। पुरुष एकल वर्ग में ब्राजील के जोआओ फोंसेका ने क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में सफलता हासिल की। जोआओ ने चौथे राउंड में कैस्पर रूड को 7-5, 7-6, 5-7, 6-2 से पराजित किया। अब क्वार्टर फाइनल में फोंसेका का सामना चेक गणराज्य के जैकब मेंसिक से होगा।
समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।